Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium, Standard 10th, Subject English. Friends, you already know that we have been started our fourth lesson from the diary of Anne Frank. And who was Anne Frank? Anne Frank was a 15-year-old girl, German Jewish girl. Okay, by religion she was Jewish, and by nationality she was German. Okay, because of the Nazi occupation and the operation of the Nazi military, they all are gone hide for the 2 years. Okay, and after that they have all been discovered by the Nazi military occupations, and after that only his father Otto Frank was only remain from the concentration camp of his फैमिली. ओके, उसकी फैमिली में से सिर्फ ऑटो फ्रैंक, उसके जो फादर है, वही बचे थे. जब उन्हें डिस्कवर किया गया आफ्टर 2 years, तो उन्हें वहाँ से कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया. एंड वहाँ से जब व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर, ओनली हिज फादर और alive at that time. Okay, so when he reached to the German, I think yes, German Amsterdam. Okay, return to the Amsterdam. They all are basically belong to the German, and from there they migrated Amsterdam, and from Amsterdam, the capital of the Netherlands. Okay, so when he back to the Amsterdam after completing all this war, finished all this war, he find out the one diary of his daughter Anne Frank, and he at the time he decided to publish it. Okay, so let's start with the chapter. So this is all about the writing work of Anne Frank and diary, all written by the Anne Frank in diary. Okay, all the chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Okay, what Anne Frank said, that there is a very strange experience for me to writing something in a diary, because not only that के I have never written anything before, मैंने पहले कुछ नहीं लिखा. सिर्फ इतना ही नहीं है, but not only but also, here is a subordinate conjunctions. Okay, not only but also. Okay, सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैंने पहले लिखा नहीं है, but also बिकॉज इट सिम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि लेटर ऑन, इसके बाद नीदर आई नॉर एनी वन, नहीं मैं भी नहीं और दूसरा कोई भी नहीं, ये 13-year-old स्कूल गर्ल के जो म्यूजिंग्स है, म्यूजिंग दैट मीन्स के थॉट्स है, उसमें इंटरेस्ट लेगा. ओके, सो दैट्स वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरी लिखना समथिंग कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, oh well, it doesn't matter, पर मेरे लिए ये कोई मैटर नहीं रखता. I feel like writing and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. और मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता कि after some time even I myself thought that all this diary writing stuff is mess, but मुझे अभी लिखना है, सो मैं लिख रही हूँ. और सब में ज़्यादा अच्छा तो ये है कि टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मुझे कुछ मेरा दिल पे से कुछ भार उतारना है. हम यूँ बोलते हैं ना, भार उतरा. ओके, बट यहाँ पर यूँ बोलेंगे कि लाइक कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है आपके साथ मुझे. पेपर हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वोट्स. Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands
bored and listless, wondering whether to stay in or go out. ओके जो पेपर होता है ना उस पर जिस पे हम रिटर्न वर्क करते हैं, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन, वो क्या है, उसके अंदर ज़्यादा पेशेंट है, पेशेंट दैट मीन्स के सब्र है, मोर देन पीपल, लोगों करते हैं, क्योंकि ना पेपर हमारी सुनता है थ्रू द वर्ड्स, हमारी फीलिंग्स, इमोशन, ओके, बट पीपल आर ऑलवेज इन अ हरी, वो कभी नहीं सुनते हमारी इतने अच्छे से। मुझे ये वो ऐसा बोल रही है कि मुझे किसी ने ऐसा बोला था, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन, मुझे ये याद आया, ये थॉट आया कि ये कहा गया है। वैसे दिनों में मुझे ये बात याद आई कि जब मैं डिप्रेस्ड फील कर रही थी और अपने घर पर मैं कैसी बोर होकर बैठी हुई थी, लिस्टलेस, यानी मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, टायर्ड थी मैं वो एट दैट टाइम, और मैं सोच रही थी, वंडरिंग, सोचना कि मैं घर पे रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और मैंने घर पे रहना पसंद किया, वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, ब्रूडिंग यानी डीप थॉट, ओके, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंट होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड टू एज अ डायरी unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of differences. क्या कह रही है कि जब तक मैंने ये आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड टू एज अ डायरी, मैं किसी को ये मेरी डायरी तब तक पढ़ने नहीं दूँगी, मैं ये प्लान नहीं कर रही हूँ, मैं ये प्लान नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी को भी ये मेरी नोटबुक वाली ग्रैंडली जो रिफर्ड डायरी है, जिसको लोग डायरी बोलते हैं, नोटबुक है, ऐसी जाड़े पेज वाली, थिक पेज वाली जो बुक है जिसे मैं डायरी बोल रही हूँ, वो मैं किसी को भी पढ़ने देने वाली नहीं हूँ। आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू रीड माई डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल वन, जब तक मुझे एक रियल, एक ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता। इट प्रॉबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं पॉइंट की तरफ आ रही हूँ, मेरा जो मेन मोटो है उसकी तरफ, दैट prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Okay. Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. मुझे आज ये डायरी को प्रायोरिटी देनी है because I don't have a friend. मेरा कोई फ्रेंड नहीं है. So now on this point, this Anne Frank make this diary her best and true friend. Okay. सो लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, तो मुझे कुछ आपको अच्छे से समझाने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अनोन इन द वर्ल्ड, मुझे अच्छे से समझाने दो कि ये कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि 13-year-old गर्ल जो है वो ये दुनिया में अकेली है। ओके, इवन वी डोंट बिलीव, बिकॉज अगर 13-year-old गर्ल या बॉय है तो उनका एक ग्रुप होता है, ओके, फ्रेंड ग्रुप होता है, और वो उसमें काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं भी हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरे पेरेंट्स हैं बहुत अच्छे जो मुझे प्यार करते हैं, और मेरी 16-year-old सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल इन आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और दूसरे 30 पीपल है जिन्हें मैं फ्रेंड्स बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। वो क्या बोल रही है कि आई हैव अ फैमिली, आंट्स, अंकल एंड ऑल द थिंग्स, ऑल द अदर पीपल्स आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिसे मैं और गुड होम, और अच्छा होम भी है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई ट्रू फ्रेंड्स। ऑन द सरफेस नहीं, ऑन द सरफेस पे से मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। अगर आप लोग देखोगे तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव एवरीथिंग, एन ए फ्रैंक बोल रही है, बट आई हैवंट वन ट्रू बेस्ट फ्रेंड, बट मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज़ हैविंग अ गुड टाइम। अगर मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं अगर मेरे फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ उनके साथ। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मैं अपने आप को उनके साथ बातें करा लेती हूँ। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, बट मैं अच्छा सा एन्जॉय, सा कैजुअल फ्रेंड्स में जैसा होता है ना, बैठना, बातें करना,
ऑन द टेम्पररी थिंग्स, ओके। तो वैसा सब कुछ है हमारे बीच में, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। और वो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, रूटीन की जो चीज़ें उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, और मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ इतना ही कर सकती हूँ। मैं उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बता पाती हूँ, अपने बारे में मैं उनसे कोई बात नहीं कर पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और मैं उनसे ज़्यादा क्लोज भी नहीं हो पाती हूँ। लाइक बेस्ट फ्रेंड और ट्रू फ्रेंड के साथ क्लोज होते हैं ना एक दूसरे से, वैसे नहीं हो पाती हूँ। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। शायद ये मेरा फॉल्ट है कि मैं अपनी पर्सनल बात कहने के लिए ऑपोजिट पर्सन में जितना ट्रस्ट करना चाहिए वो ट्रस्ट नहीं है। शायद एनी फ्रेंड हैज़ अ ट्रस्ट इश्यू, दैट्स वाई। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और ये चीज़ है कि ये चीज़ मेरा जो नेचर है कि मैं किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकती, सो ये नहीं हो पा रहा है मुझसे, ओके। सो शायद इसीलिए मैंने क्या किया है, डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया है। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, दैट मीन्स के एक उसके मन में एक इमेज थी कि दैट माई बेस्ट फ्रेंड लुक्स लाइक दैट, behave like that and all that, but she can't find his true or best friend. So what did she do at that time? She made diary her best friend, okay. So वो क्या बोल रही है कि इमेजिनेशन के अंदर जो एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, यानी कि ये जो डायरी थे इसके बारे में मैं आपको कुछ बता रही हूँ। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट। मैं ये डायरी के अंदर जो डे टू डे बेसिस के ऊपर अदर पर्सन्स जिस तरीके से पूरा रूटीन लिखते हैं, इस तरीके से मैं कुछ नहीं लिखने वाली हूँ। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बट मैं ये डायरी को अपनी फ्रेंड बनाने वाली हूँ। फ्रेंड से हम इमोशन से शेयर करते हैं, हमारी कोई फ्यूचर प्लानिंग हो तो वो डिस्कस करते हैं ना, ओके। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं ये फ्रेंड को क्या बोलने वाली हूँ, किटी बोलने वाली हूँ, ओके। आज यहीं तक का करेंगे। लेट्स दूसरे सेशन में हम चैप्टर आगे देखें। अल्लाह हाफिज़।